फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। Hello and welcome to Cricket Next. मैं हूं सौम्य कपूर and we are back with the 6:45 live show every evening जो हम करते हैं. And Sunil Gavaskar, the former India batter, the legendary batter, has said that he's a bit disappointed with the captaincy, the kind of captaincy that Rohit Sharma has been doing in the past couple of years. Well, to talk more about it, I have with me Jamie Alter, Chetan Narola and Chaitanya Nanda for joining me in this show. Thank you. Hi guys. I guess there was a glitch with the network. Yeah. Welcome to the show, guys. To start with, I would first wish a very happy birthday to Sunny ji. Sunil Gavaskar sir. He's turned 74 today. But Chaitanya, I will start with you first. You know, he said that he's a bit disappointed with the kind of captaincy that Rohit Sharma has been doing. And of course, जिस तरीके के results अभी तक आए हैं, जो भी हमने tournaments खेले हैं, that are not really favorable. Your thoughts about it? See, जब आपकी फेवर में रिजल्ट्स नहीं आते तो obviously you try to pinpoint the things. But I think as a legend, rather saying that he's more disappointed, he could have advised Rohit Sharma about what to do, what not to do, how to go about it. It will be much better. Finding a glass half empty, it's not a right choice. It's always better to see the glass half full. So I think हमारे को लाइफ में हमेशा सबको एडवाइस करना चाहिए. Rather just pointing out the mistakes. Actually, all the humans are made to find out mistakes, not find out the solutions. That's the problem here. So I agree, results are not in favor of India. We have not won any ICC trophy in last 10 years, or might be a little bit more. But still, as a legend, we should advise our youngsters or the people, those who are taking the leadership role. So I think that will be much better on behalf of Mr. Sunil Gavaskar if he would have done that if he would have said, I am disappointed and I would like to advise Rohit, like this should be done and this should, he should take care of all these things or tick all these boxes before the World Cup comes or any series comes up. So that would have look much better on his part for me. But Chetan, don't you think कि रोहित शर्मा का responsibility probably ज़्यादा है कि he can go to a senior, an experienced cricketer, a former cricketer, and just take suggestions, have a chat about it, like what is going wrong exactly. It would be a bit weird if any senior player just goes to him and starts suggesting things to him. Look, I think what I'm going to say is a little weird, and I hope Chaitanya doesn't mind it. But cricketers की एक अलग ego होती है, ठीक है? So Rohit Sharma, given the stature that he has, the status that he has, he's the India captain. Sunil Gavaskar, he's a legend of the game, a legendary Indian batsman. He's a great commentator, a great expert, great analyst. कोई किसी के पास नहीं जाता है, जबरदस्ती नहीं जाएगा. सुनील गावस्कर अपने आप नहीं आएंगे एडवाइस देने, रोहित शर्मा नहीं जाएंगे एडवाइस लेने, क्योंकि Rohit Sharma probably doesn't feel that he's doing anything wrong, क्योंकि we haven't seen that kind of homework, we haven't seen that kind of an analysis कि भैया WTC में what happened wrong, last 2 years what has happened wrong. Sunil Gavaskar is not going to go and say कि भैया आप ऐसे ऐसे करो, क्योंकि unsolicited advice nobody wants to give. तो ये हम बैठ के हम सोचते रहेंगे ये नहीं होगा, कभी हुआ ही नहीं है आज तक, कभी नहीं हुआ है आज तक. एक बार शायद हुआ था, और वो भी विराट कोहली वेंट एंड आस्क्ड रवि शास्त्री, वेंट एंड आस्क्ड सचिन तेंदुलकर, वो अपने आप एडवाइस देने नहीं आए थे. नहीं तो अभी वापस एडवाइस देने नहीं चले जाते, बिकॉज विराट कोहली's फॉर्म इज नॉट रियली इंप्रूविंग इन टेस्ट क्रिकेट एट लीस्ट. सो जितना बड़ा प्लेयर होता जाता है ना, वो कोच से भी एडवाइस नहीं लेता है रिगार्डिंग हिज बैटिंग, रिगार्डिंग हिज इनपुट, let alone captaincy, which is such a huge issue in and when he says I remember once calling Virender Sehwag out of the blue, is Mr. Gavaskar, with all due respect, is Sunny Bhai calling Rohit Sharma? Has he called him? So Rohit Sharma might not come to him, but has Sunny Bhai also called him? Calling an Indian captain कि ये करो ये करो ये करो is never easy and is never going to go down well. So I think वो थोड़ा we need to take with a pinch of salt.
Having said that, I think it's a little. I'm not saying Rohit Sharma has been a great captain, but it is also a little unfair. Because you look at MS Dhoni, you look at Virat Kohli, or maybe even before that, Saurav Ganguly, Rahul Dravid. Everybody came into the job with little expectations, or those expectations were tempered during time. गांगुली को आते ही ये किसी ने नहीं बोला कि आप वर्ल्ड कप जीत के लाओ या ये करो या वो करो. वो ऑब्वियसली उन्होंने ही स्टार्टेड सेटिंग अ ट्रेंड. राहुल द्रविड़, nobody asked him एकदम से कि आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो. Because when Rahul Dravid became captain in 2004-5, the target was 2007. इतनी दूर था. Rohit Sharma became captain in 21, and 21 में he had a World Cup. 22 में he's had the he became captain in 21, 22 जब भी 22, right? 22 में he became the all-format captain. Immediately he had the T20 World Cup. Immediately he's had the WTC. Within a span of 1-2 years, उनको deliver करना पड़ रहा है. एक ये अब क्रिकेट बन चुका है. So that's a little unfair on him. Having said that, he has been really ordinary. Yeah. But Jamie, ये जो expectation की बात है या ये unfair होने की बात है, Rohit Sharma was given the captaincy because Virat Kohli wasn't delivering as the skipper, and your first job ये डिफाइन था कि आपसे हमें आईसीसी ट्रॉफीज चाहिए. अगर वो नहीं आ रहा तो ये अनफेयर फेयर का हम खेल नहीं खेल सकते अब रोहित शर्मा के लिए. What are your thoughts about it? Again, very, very tough because, like we've said before, रोहित शर्मा किस माहौल में, किस सर्कमस्टेंसेस में वो तीनों फॉर्मेट के कैप्टन बने. अगर हम देखें आइसोलेशन में 21 he started the job, but for all practical purposes हम एक डेट लॉक करते हैं, हम जैन 2022 से शुरू करते हैं जब वो तीनों फॉर्मेट के कैप्टन बने, राइट. एंड आई विल गो बैक टू समथिंग आई सेड अ फ्यू डेज अगो. आई थिंक चैतन्य जरूर थे उस शो पे. चेतन आई थिंक वाज नॉट देयर. आई एम सेइंग unfair, fair. I agree with you. I wouldn't take that line of thinking for two reasons. One, आप रोहित शर्मा हो, जब विराट कोहली को निकाला गया फिर टेस्ट से उन्होंने खुद अपना रिटायरमेंट दिया. The selectors or the team manager जो भी कहो, उन्हें who is the most logical option? खुद ब खुद उनको हाथ ऊपर नहीं करना पड़ा. वो रोहित शर्मा की तरफ सबकी नजर गई because after विराट कोहली he had the best record, he had the stature, and he had the success with Mumbai Indians, right? So when the IPL gets given so much weightage, जाहिर सी बात है कि जिस इंसान ने 5 बार IPL टाइटल जीता, आप उनको वो जॉब देंगे, right? But because, and here I'll just take Chetan's views forward, you have to, I'll go back to the KRA example जो मैंने पिछले हफ्ते दिया था. इनको 3 जॉब दिया गया था. भाई आपको T20 वर्ल्ड कप जीतना है, वो नहीं कर पाए. आपको WTC फाइनल जीतना है, वो नहीं कर पाए. और आपको वनडे वर्ल्ड कप जीतना है, वो नहीं कर पाए. क्यों नहीं कर पाए? इट्स नॉट रोहित शर्मा's fault. गलती उनकी नहीं है. अभी बचा है. हाँ, मैं वही कह रहा हूं. But I'm saying his job, Chetan, to my view, his job ends the day after the World Cup. Irrespective of India winning the World Cup or not, आपको 3 ट्रॉफीज के लिए कैप्टनसी दी गई. मेरा ये मानना है 2 में आप फेल हो गए. अब एक बाकी है, राइट. बट बुमराह नहीं है, ऋषभ पंत नहीं है. बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि it's not gone in his favor. Now let's look at the results. टेस्ट में वो एब्सेंट थे बहुत बार. इन्होंने सिर्फ 7 बार टेस्ट में कप्तानी करी है, जिनमें से 6 बार इंडिया के अंदर आया. That's too small a sample size for you to judge him. Where do you judge him? You judge him in the format जहां पे इनकी सफलता बहुत है, right? 32 T20s, you've actually won 24 of those. तो नंबर्स इनके आंकड़े बहुत अच्छे हैं. लेकिन सबसे बड़ी बात, अब एशिया कप के फाइनल तक आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, और T20 वर्ल्ड कप में आप मर के थक के आप पहुंच तो गए सेमीफाइनल, लेकिन वहां पे जो इंग्लैंड ने आपको हराया 10 विकेट से, इट शोड कि आप एक आउटडेटेड फॉर्मेट खेल रहे हो. वनडेज में 16 मैचेस, 11 विंस, 5 लॉसेस. तो इट्स नॉट ऑल दैट बैड. बट रोहित शर्मा इंजरी प्रोन है, 36 के हैं. क्या वो 2 साल खेल पाएंगे? I don't know, right? So Mr. Sunil Gavaskar has a point to a certain degree, but I'll echo both Chaitanya and Chetan. क्या उन्होंने कॉल किया, क्या उन्होंने SMS किया, क्या उन्होंने WhatsApp डाला? I think that's a bigger thing. It's very easy for him to go out and say something. आपका योगदान क्या है to make him a better captain? Yeah. And Chaitanya, here Harbhajan, who's played with Rohit in MI, has said that the people are really going very hard on him. It's a bit harsh the way the feedbacks are coming in. But again, my viewpoint is
you took up the captaincy because हम लोग ICC ट्रॉफीज जो भी है नहीं जीत रहे थे. उसके बाद रिजल्ट्स की जहां तक बात है, ठीक है, आई एग्री टू व्हाट जेमी सेड दैट 7 मैचेस में आपने कुछ खराब नहीं कराया एज अ कैप्टन. लेकिन आप अगर आप माइंड सेटअप देखें, अगर आप बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो लास्ट हमने WTC से पहले खेली थी, you had just won 2 games and you were talking about the fourth one. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, आप कहीं ना कहीं आपका जो एक पोजीशन था वो वो पेंडुलम बन गया कि आप क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे. अगर आप हार गए या जीत गए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आ गई, तो ऑफ द फील्ड भी आप बहुत ऐसी चीजें कर रहे हैं जो एक एज अ कैप्टन आपको नहीं करनी चाहिए. सी पहली बात तो आई थिंक यहाँ पे जो जितने भी कमेंट्स अभी तक मैंने पढ़े हैं हरभजन के या गवास्कर सर के, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ना कुछ पर्सनल रिलेशंस भी दिखाई देती हैं यहाँ पे. अगर आपने वो भी इंसिडेंट देखा होगा जब IPL में रोहित वाज गेटिंग बीटन और भाई वाज सिंगिंग अ सॉन्ग ऑफ लता मंगेशकर, तो मतलब यहाँ पे ना कुछ थोड़ा बहुत ऐसा भी लगता है कि कुछ है. और देखिए बिफोर द वर्ल्ड कप और एशिया कप यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, इट डजंट मेक सेंस. क्या आज इंडिया अगर उनके बोलने पे क्या हम क्या कप्तान को बदल देंगे आज? आप पहली बात तो ये है. और दूसरी बात, जैसे चेतन ने बोला, मतलब नो हार्श फीलिंग्स, बट उन्होंने वीरू को भी तो कॉल किया था कि यार तेरे बैट पे बॉल नहीं लग रहा, तो तू ऐसे खड़ा हो जा, वैसे खड़ा हो जा. तो वो उसके लिए भी बोल सकते थे कि वीरू को टीम से बाहर कर दो सीधा आगे स्टेज पे. तो इट्स अबाउट अभी WTC फाइनल के अंदर उन्होंने बोला विराट ने क्या शॉट खेली, विराट की शॉट से हम मैच हार गए. तो अजिंक्य रहाणे ने भी तो सेम शॉट खेला था, तो ये क्यों नहीं बोला विराट और अजिंक्य रहाणे की शॉट से हार गए? तो मतलब कहीं ना कहीं हमें समझना होगा एज ए ह्यूमन, एज ए स्पेक्टेटर. आई एम नॉट टॉकिंग एज ए क्रिकेटर, एज ए स्पेक्टेटर आई कैन अंडरस्टैंड कि ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, मतलब क्यों हो रहा है ऐसा. तो हम एज कॉमन सेंस अगर यूज करें तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बायस है यहाँ पर ना, कि और राइट टाइम नहीं है ये. मतलब दिस इज नॉट द टाइम वेयर यू वांट टू हैव द लाइमलाइट फॉर ऑन दिस पॉइंट. मैं मानता, हाँ वर्ल्ड कप खत्म होता, वर्ल्ड कप खत्म वनडे वर्ल्ड कप के अंदर अच्छा नहीं करते रोहित, टीम अच्छा नहीं करती, तो उसके खत्म होते ही अगर वो बोल देते आई एम रियली डिसअपॉइंटेड, तो मेरे को समझ में आता कि हाँ ठीक है, मतलब उन्होंने दोनों तीनों फॉर्मेट में उनको मौका मिला, वो ट्रॉफी नहीं जीत पाए, तो बिल्कुल सही है. या फिर वो ये तभी बात बोलते जब WTC फाइनल खत्म हुआ था, या जब हम T20 का वर्ल्ड कप हारे थे, या एशिया कप में हम क्वालिफाई नहीं हुए थे, उसी टाइम पे बोलते कि वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद रोहित शर्मा कैप्टनसी. सो इंडियन सिलेक्टर्स कैन मूव ऑन हिज थॉट. एक लेजेंड की थॉट आती है तो थोड़ी सी ना आवाज मार्केट में होती है, तो लोगों के दिमाग में एक इंप्रेशन बनता है. तो अगर ये बात उस टाइम पे बोली होती तो ऑब्वियसली इंडियन क्रिकेट के पास टाइम होता, they would have moved on, they would have started looking for somebody else also. So I think at this point of time this is not right to say it. अब दूसरी तरफ हम बात करें, जैसे हरभजन came out in favor of रोहित शर्मा. रोहित शर्मा ने IPL में काफी ट्रॉफीज जीती हैं. दूसरी बात, वहां पे काफी तारीफ हुई हमेशा कप्तानी के लिए उनकी. इंडिया के लिए भी जब वो खेलना शुरू कर, देखा जाए तो कुलदीप को उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया वापस आने के लिए. कुलदीप आए हैं, उनके कैप्टनसी के अंदर वापस आए हैं, उन्होंने परफॉर्म करना शुरू किया, जो कि बहुत मेजर रोल प्ले करेंगे इस वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया के जीतने या हारने में. अगर कुलदीप अच्छा बॉल डालेंगे बीच में तो इंडिया मैच जीतेगी, अगर वो अच्छा नहीं डालेंगे तो काफी मैचों में हम देख सकते हैं कि इंडिया बैकवर्ड पे हो. तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एज ए कैप्टन उसने लोगों के अंदर एक विश्वास दिखाया है, जैसे जिस लोगों को उन्होंने पसंद किया. बिकॉज इफ यू सी ऑल एराज ऑफ ऑल कैप्टन्स, एवरी कैप्टन से डिफरेंट फेवरेट प्लेयर्स. सो उन्होंने अपनी टीम में कुछ फेवरेटिज्म करके जिसको भी किया, जिसमें उन्हें ट्रस्ट है, उसको वो खिलाते हैं. तो मुझे लगता है यहाँ पे रोहित ने वो किया है. बट हाँ, टाइम वॉज राइट नहीं था, लेकिन हाँ हम सारे टाइम, मतलब अब हम उनके फेवर में उतर रहे हैं लोग. तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये भी वो है कि मतलब बायस जा रहे हैं कि बहुत ज्यादा उनके फेवर में उतर रहे हैं. तो मुझे लगता है कि रोहित को नॉर्मल छोड़ना चाहिए, इस टॉपिक को इतना ज्यादा हवा देनी नहीं चाहिए. लेट दिस थिंग डाई क्विकली एंड लेट हिम कॉन्सेंट्रेट ऑन कमिंग एशिया कप एंड द वर्ल्ड कप. एंड वो आप जो कह रहे हो कि वो बाहर जाके क्या बात कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, see this could be also a confidence, because you as a captain you know what your team is doing. When you have a good team and your players are performing well, then you start talking in a different way. जैसे आपने देखा है बैसबॉल के अंदर बेन स्टोक्स की अगर बात करो, तो जब भी वो बात करने आते हैं तो उनका एक अलग तरीका बात करने का, तो लोग उनका मजाक भी उड़ा सकते हैं कि 2 टेस्ट मैच हार गए और अभी भी ऐसे बात कर रहे हैं. तो it is more important how you show yourself, because अपने आप को वीक दिखाना is not a bravery.
आप अपने आप को वीक पब्लिकली क्यों दिखाएंगे? अगर आप वीक हैं भी तो यू डोंट नीड टू शो इट But दैट यू आर वीक. Chetan and Chetan, I would also come to you for this. वीक ना दिखाना, स्ट्रॉन्ग रखना अपने को, और कंप्लेसेंसी दिखाने में एक फाइन लाइन होती है. आप हारने के बाद भी, आप एक 2 टूर्नामेंट 3 टूर्नामेंट देने के बाद भी आप मजाक मस्करी नहीं कर सकते. देखिए, आई विल टू बी वेरी फ्रैंक एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट. ओके, दैट्स फाइन. यू हैव अ क्लैरिटी कि आपने तरीका है. या See, Yeah, यहाँ पे go there's a very fine line between questioning and you giving analysis and questioning. इसमें बहुत fine line है. सनी भाई, obviously I respect him a lot, but यहाँ पे मैं एक चीज यही कहूंगा कि ठीक है, जो जैसे चैतन्य ने कहा कि उन्होंने विराट कोहली के बारे में कहा, पुजारा के बारे में कहा, रहाणे के बारे में कहा, ठीक है, उस टाइम पे हम लोगों ने भी बहुत कुछ कहा था. हमारी सबकी इमोशंस had overcome our sensibilities, और in a way हम सब ने उस टाइम पे फ्रस्ट्रेशंस दिखाई थी, गुस्से दिखाए. चेतन, मैंने ये कहा है कि विराट के लिए बोला उन्होंने, लेकिन अजिंक्य के लिए नहीं बोला. Equal, अजिंक्य ने ज्यादा being a person, I have to be equal. No, I cannot be a favorite. I can't show. You see, the thing is कि Ajinkya was coming back into the team. वो But एक ही he टेस्ट doesn't मैच care. और उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में भी वो रन बनाए, 80 रन बनाए. विराट कोहली के 3 साल से आपका 30 से लेस का एवरेज है. यू आर विराट कोहली and you're getting out in that same fashion again. See, as a cricketer, you cannot go कि वो कैसे आया, वो कमबैक कर रहा है या वो परफॉर्म कर रहा है टीम में. अगर वो 80 पे खेल रहा है, तो उसकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस मैच को निकाले. वो 30 वाली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. लेकिन 80 पे अगर आप गंदा शॉट मार के आउट हो रहे हो. Ajinkya Rahane is not competing with the likes of Steve Smith and Kane Williamson and this and that and all. That is Virat Kohli. Every time we talk about it, उस conversation में विराट कोहली आते हैं. और आपने पुजारा को इतना बड़े आराम से स्केपगोट बना के हम नया करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. The question mark needs to be asked. ये तो फॉर्म की बात हो गई. देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ. पिछले 8 महीने में उन्होंने it was an emotional comment. Whether it was fair or not, it was an emotional comment. 8 महीने के अंदर उन्होंने आके अक्रॉस फॉर्मेट, हर फॉर्मेट के अंदर 100 लगा दिए. उसके बाद उन पे क्वेश्चन उठाना. नहीं, let's not talk as a Virat Kohli fan. Ahmedabad का टेस्ट 100 does not count. Ahmedabad का टेस्ट 100 does not count. तो फिर सचिन के 100 काउंट करो. काउंट तो करना ही पड़ेगा आपको. उससे विराट कोहली वाली बात बाद में करेंगे. नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि वो तो डिस्कशन अलग. सुनील गावस्कर का जो कमेंट था, that was an emotional comment, right? That's what I'm saying. मैं ये नहीं कह रहा हूँ. When you are legend, you cannot give emotional or professional. That's what I'm coming to. मैं यहाँ पे बैठ के ऐसे प्रोफेशनली बात करूँगा, इमोशनल होगी. I agree. That's why I'm coming to the second. That's why I'm coming to the second part of my comment about Sunny भाई, कि आपने उस टाइम पे इमोशन में आके वो कमेंट कर दिया. लेकिन आप जब एनालिटिकली कमेंट करो, जब आप क्रिटिकली कमेंट करो, वेयर आर यू क्वेश्चनिंग द बीसीसीआई कि भैया मेरा चीफ ऑफ सेलेक्टर कहाँ है? अब आपने वेस्ट इंडीज की टेस्ट टीम सेलेक्ट कर दी विदाउट अ चीफ ऑफ सेलेक्टर, और उसके एक हफ्ते बाद आपने चीफ ऑफ सेलेक्टर पिक किया है और ओडीआई और टी20 किया था. तो भैया आपको पता है कि आपको टीम भेजनी है, आप सो रहे थे, आप एक हफ्ता पहले कर लेते. जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और जब तक आपने टीम सेलेक्ट की, कितना गैप था? 3 या 4 हफ्ते का गैप था उसके बीच में. तो यू शुड हैव योर चीफ ऑफ सेलेक्टर बाय देन, ताकि नया चीफ ऑफ सेलेक्टर आके आपकी टेस्ट टीम सेलेक्ट करता. तो माय क्वेश्चन टू सनी भाई इज हियर कि आप इसके बारे में भी कमेंट करो. ठीक है, आप इसके बारे में भी कमेंट करो. एंड so that's what I'm saying, कि there's a bit of a unfairness and there's a bit of fairness as well, whether it is Rohit Sharma, whether it is Virat Kohli. Let's say it's not an easy job being the India captain. और जहां पे अब मैंने हरभजन सिंह का कमेंट पढ़ा है, वो कह रहे हैं कि हम उनको ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि रन नहीं बन रहे हैं, फिट नहीं है वो. भैया वो फिट तो नहीं है, ये तो दिख ही रहा है ना. Harbhajan Singh probably is retired now and he's more fit than Rohit Sharma. Let's be very honest about it. Yeah. वो तो दिख रहा है ना बॉस कि वो फिट नहीं है. आप पुरानी वीडियोस देखो, जब उन्होंने डबल 100s मारे थे अपने, उस टाइम के रोहित शर्मा और अब के रोहित शर्मा में आप कंपैरिजन करो, दिख रहा है ना कि he is not really fit. So across formats when you have to play, आपको वो फिटनेस कंडीशन जरूरी चाहिए. एंड लुक, अगेन एंड अगेन यहाँ पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कैप्टनसी को लेकर. अगर हम बात करें, फिटनेस को आप 1 मिनट के लिए साइड रख दो, फॉर्म को 1 मिनट के लिए आप साइड रख दो. जो T20 वर्ल्ड कप में हुआ है, एंड आई कवर द T20 वर्ल्ड कप फॉर क्रिकेट नेक्स्ट, वहां पे यार दिनेश कार्तिक की जगह नहीं बनती थी. आप उनको डिज्नीलैंड लेकर जा रहे हो क्या रिटायरमेंट से पहले?
It was like taking a kid to Disneyland. वो Instagram post पे thank you कर रहे हैं भाई. This is professional cricket. This is international cricket. There's a World Cup on the line. The Dinesh Karthik experiment was so flawed. आपने ऋषभ पंत जैसे प्लेयर को पूरा वर्ल्ड कप बाहर बैठाया और जब मौका आया आपने उसको सेमीफाइनल में एक मैच में खिला दिया विदाउट एनी प्री मैच, विदाउट एनीथिंग. केएल राहुल को आपने पूरी टूर्नामेंट खिलाया. सो वहां पे दिखता है कि रोहित शर्मा हैड अ ग्रेट टीम इन मुंबई इंडियंस. ग्रेट टीम इन मुंबई इंडियंस. हम पेप गार्डियोला की बात करते हैं कि बार्सिलोना पे हम भी कर लेते लियोनेल मेसी के साथ. तो सिमिलरली मुंबई इंडियंस को हम भी कैप्टनसी करा के जिता देते 5 टाइटल बिकॉज दे हैड सच अ गुड टीम. बट इवन देन द कैप्टन नीड्स टू डू द बेसिक्स और वो बेसिक्स हमें इंडियन टीम में नहीं दिखाई दे रहे हैं इस टाइम पे. लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द फैक्ट्स एंड हिज कैप्टनसी हैज नॉट बीन गुड. आप रन्स को साइड रख दो. some of the things that he did during the WTC, आपने टीम गलत चुनी, अश्विन को नहीं खिलाया, वो अलग बात है बिल्कुल. लेकिन इन द मैच ऑल्सो जो डे वन आप अश्विन को नहीं खिलाया, दैट्स अ वेरी वेरी बिग फ्लॉ. और उसको आप 1 मिनट के लिए साइड में रख दो. लेकिन उसके बाद आपने मैच के अंदर क्या किया है वो भी एक क्वेश्चन मार्क है. डे वन थर्ड सेशन आपने 150 रन दिए हैं. दैट इज वेयर यू लॉस्ट द मैच. You can't just come in the post match and shrug your shoulders and say, "Oh, Travis had played well." Boss, bowling तो आप कर रहे थे ना. 6 के रन रेट से रन बने हैं लास्ट सेशन में on day 1. That is where you lost the test match. That is where the captain needs to come and control the flow of the game. That is where he has failed, whether it is ODI cricket, whether it is T20 cricket, whether it is Test cricket. और ODI क्रिकेट का पैरामीटर शायद इतना बड़ा नहीं है because he's not had that much chance. But like Jamie said, आप एशिया कप के फाइनल नहीं पहुंच पाए with the T20 side. How big of a failure is that? Yeah. Jamie, I have a comment here from SS98. Rohit should leave the captaincy. He should just play as a player because he has scored enough runs to stay in the team as a batter. And I just extend that जो अभी चेतन ने बोल रहे थे कि इस टाइम पे ये सारी बातें करना कितना वेयर्ड कर देगा सिचुएशन को इंडियन टीम के लिए. चलो ये जो सवाल आया था SS98 से, पहले इसका जवाब देते हैं. बिल्कुल बात सही है. सी बट अगेन रोहित शर्मा अभी क्योंकि ये टेस्ट टीम थोड़ी ट्रांजिशन में है, so you do need someone like him around, whether he's captain or vice captain or just a batsman. I'm not too concerned. आपको रोहित शर्मा से अगले 2 साल में क्या निकालना है? रन्स चाहिए, उनकी लीडरशिप एक्सपीरियंस चाहिए, दोनों चाहिए. दैट इज अप टू, इट्स नॉट फॉर अस टू जज. प्रॉब्लम ये कि एज एन ओपनर आई डोंट थिंक वो वेस्ट इंडीज में शायद एक मैच खेल चुके हैं, तो ही इज ऑलरेडी फेसिंग इट, राइट. लेट्स टॉक अबाउट द टेस्ट मैच स्टार्टिंग टुमारो. आपको इस टेस्ट सीरीज से क्या निकालना है, राइट? You want to get this transition team off to a good start. You want Rohit Sharma making the right decisions. You want Rohit Sharma scoring the right runs. क्या वो रन अभी रोहित शर्मा द ओपनिंग बैटर से आएंगे या वो मिडिल ऑर्डर, राइट? अगर शुभमन गिल और जायसवाल आपके फ्यूचर हैं, राइट लेफ्ट हैं, दोनों का व्हाइट बॉल साल चल रहा है, why not open him? Why not try and see maybe Rohit Sharma goes back to batting in the middle order, right? Maybe he bats at 3. So what does the Indian cricket ecosystem वो क्या चाहती है, right? देखो रोहित शर्मा विराट कोहली की तरह वो कैप्टनसी नहीं छोड़ेंगे, उनको हटाना पड़ेगा. कौन हटाएगा? We don't know, right? Because it's a very results-driven game. Let's say India tie the series 1-1. Let's say West Indies win 1 match. फिर आपका अगला टेस्ट सीरीज दिसंबर में है. अगर रोहित फिट रहते हैं, वो वहां जाते, I frankly don't see this team winning a single test match in South Africa. ठीक है? तो क्या आप 2 लगातार टेस्ट सीरीज के बाद तब आप कॉल लेंगे? So I don't know. It's not a straightforward answer. You need Rohit Sharma the captain. You need Rohit Sharma the senior. You need Rohit Sharma the opener. लेकिन अगर 3 में से 2 खराब चल रहे हैं, फिर क्या वो एज अ बैट्समैन भी अपनी जगह होल्ड कर पाएंगे? I don't know. So I think to answer the question, he's not going to give the captaincy. I still think he has a lot to offer as a batsman. But आपको 2 साल के बाद आपको सोचना पड़ेगा, क्या आपकी प्लानिंग वेस्ट इंडीज में सिर्फ इस साल की है, क्या अगले साल की है? So there is no straightforward answer to it here. Yeah. I remember once you said कि ये जो वेस्ट इंडीज का सीरीज है, this is something जो आप जहाँ पे ट्रांजिशनल फेज का इंट्रोड्यूस कर सकते हो. But again, we have the senior, except for one, we still have the senior lads playing there. और मुझे नहीं लगता कि इसमें से 2-3 लड़के पूरा 2 साल पूरा साइकिल खेलने वाले, considering the kind of fitness they have, and Rohit Sharma is one of them. तो क्या रोहित को यहाँ पे probably, I'm not saying give away your position, but क्या वो एक्सपेरिमेंट करना चाहिए था?
कि ठीक है, I'll drop from this series, let's see what happens, let's get into that transitional phase and go move ahead. क्योंकि आपने अजिंक्य को तो वाइस कैप्टेंसी दे ही दी है ना टेस्ट मैचेस की, तो आपके पास कैप्टेंसी का इशू नहीं है अभी फॉर नाउ. सी मुझे लगता है ये बेस्ट टाइम था ट्रांजिशनल के लिए, क्योंकि बिकॉज अभी देखिए आप, वही वाली बात है कि आप रोहित की एज देखिए, अभी वर्ल्ड टेस्ट सीरीज के लिए अभी शुरुआत हुई है, दोबारा से पूरा एक साल पड़ा है सब कुछ. तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंडिया को वो ट्रांसफॉर्मेशन करनी चाहिए थी अभी. जैसे कि मैंने बोला, और लेकिन ये होती कैसे, जैसे चेतन ने बोला चीफ सेलेक्टर तो थे ही नहीं आपके पास, तो ये होती कैसे, इतनी बड़ी डिसीजन लेता कौन, और वहां पे कोई लेजेंड नहीं आके बोलेगा ये बात. नो वन विल गो एंड कम आउट एंड स्पीक लाइक दैट, बिकॉज बीसीसीआई के साथ काम भी करना है आपको. सो मुझे नहीं लगता कि ऐसा मतलब ये टाइम था जहाँ पे ये चीज होनी चाहिए थी. एंड यू कुड हैव ट्राइड, बिकॉज वेस्ट इंडीज इज नॉट अ वेरी ग्रेट साइड. उनके बहुत सारे मेन प्लेयर खेलना ही पसंद नहीं करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि उनको कहीं पे T20 टूर्नामेंट्स मिल जाएं खेलने के लिए. तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा मौका था इंडिया के लिए जो इंडिया ने ग्रैब नहीं किया है. तो दैट्स अ मिस्टेक. बट सेकेंडली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि ये कॉल लेता कौन कि ट्रांसफॉर्मेशन करनी है नहीं करनी. अब बात करते हैं अगर वनडे की. रोहित शर्मा, देखिए फिटनेस वाली बात जो रोहित शर्मा की है वो आज से नहीं है, वो काफी टाइम से है. और हमें भी पता है कि विराट की कप्तानी में भी ये वाली बात काफी बार उठी है. जितने भी चेतन है, जेमी, इन सबको पता होगा इस बारे में कि पीछे क्या बातें रहती थी और कैसे होता था. तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है. इफ यू आर नॉट फिट, obviously it will start slowing you down in coming time. But right now जिस स्टेज पे हम वनडे के अंदर खड़े हैं, तो मुझे लगता है उस टाइम पे ये बात हमें करनी ही नहीं चाहिए थी. हमें रोहित को इनफैक्ट रेस्ट भी देना चाहिए था टेस्ट क्रिकेट के अंदर, और वनडे सीरीज खिलाई जानी चाहिए थी उनको, सो ही वुड हैव स्टेड फ्रेश. जो भी आपके प्लेयर्स थे जो ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं, उनको आप जितना फ्रेश रखते उतना अच्छा है टीम के लिए. बिकॉज ये पहले होता था कि क्रिकेट कम होने के कारण वो कहते थे कि यार जितनी क्रिकेट मिल रही है उतनी खेल लें. बट राइट नाउ देयर इज अ ओवर बर्डन ऑफ क्रिकेट. बहुत क्रिकेट होती है, तो ऐसा नहीं है कि कोई प्लेयर इंजरी से जरूर आ रहा हो कि 8-10 महीने के बाद तो उसको सब कुछ खिलाना चाहिए, दैट ही कम्स इनटू द फॉर्म. बट राइट नाउ दीज प्लेयर्स, दोज हु गोना प्ले ओडीआई वर्ल्ड कप अभी तक, वो सब बहुत क्रिकेट रेगुलरली खेल रहे हैं. तो मुझे लगता है कि ये कमेंट इस टाइम पे आना इट्स नॉट गुड फॉर इंडियन क्रिकेट. Putting a different thought or a pressure on your captain who's going to lead you into the World Cup and Asia Cup doesn't make any sense for me. As a nation, whatever you're saying, you are not saying as a cricketer right now, not as a legend. You are saying it as a person of a nation who wants to win this cup, who wants to win the ICC trophy. आपको ये सोचना होगा, अगर आप ऐसा कोई क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपके जो लीडर है, जो लीड करने वाला है, उसके माइंड में कहीं ना कहीं प्रेशर या थॉट आता है, कंफ्यूजन आती है बिकॉज ऑफ दिस कमेंट, you are not hurting only Indian cricket, you are hurting the nation, complete nation, who's just gonna want to win this tournament. So I think this is a very wrong timing for this comment. ठीक है, टाइमिंग खराब है. बट चेतन भाई, बिफोर वी रैप दिस सेशन, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि टाइमिंग वगैरह ठीक है, सब अपने एक्सपर्ट्स अपने कमेंट्स देते हैं, दैट्स फाइन. बट अब बोर्ड का और रोहित शर्मा का कॉन्वर्सेशन क्या होना चाहिए, आइडियली, कि आप जाइए, आप क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले ना एक टूर्नामेंट है, मल्टीनेशन एशिया कप, अगर आप वो भी हार गए इन केस, तो आप पे फिर बहुत सारे क्वेश्चंस उठेंगे. सो शुड देयर बी अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन द बोर्ड एंड द कैप्टन कि आप जाइए, खेलिए, no matter what the result is, just stay calm and just play your game and just have a team whatever you want. Look, I think थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिसएग्री करता हूँ चैतन्य से कि we should have had मतलब maybe we should have had a change in test captaincy and all, but look, this is a World Cup year. This is an all format captain we are talking about. ये बात मैंने पहले भी कही है कि इस साल nobody is going to touch Rohit Sharma, nobody is going to disturb him. Because you try and understand, अगर आप उनको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लॉस के बाद कैप्टनसी से हटा देते ना, टेस्ट कैप्टनसी से एकदम से वेस्ट इंडीज के लिए, so it would have created a lot of waves, and that's just 3 months before the World Cup, which is unnecessary. So the fact that Rohit Sharma and nobody is resting, maybe only Rishabh Pant, and to be honestly, अगर आप देखिए full squad में से सिर्फ रोहित शर्मा और आपके मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह मिसिंग है. So in that particular sense, it's a very, very full strength Indian side that has gone there.
and they think कि they can beat West Indies 2-0, which would be a good start for the World Test Championship cycle next, जो अगली शुरू हो रही है अब. So I don't think anybody wanted to ruffle the feathers here. उनको टेस्ट कैप्टनसी से हटा के. अब it was very convenient कि आपके पास चीफ ऑफ सेलेक्टर नहीं है, कि आपने नया टेस्ट कैप्टन बनाया ही नहीं, ठीक है. एंड आई डोंट थिंक देयर इज एनीबडी देयर. ये कमेंट जो मैं देख रहा हूँ एमएसके प्रसाद का, yes, why not Virat Kohli? And I think I can understand why he's saying that, because during his tenure, Virat Kohli had a very successful period as a test captain. But I think the chapter of Virat Kohli being the test captain, as much as I've seen Virat Kohli, as much as I've observed Virat Kohli, I don't claim to know Virat Kohli. But as much as I've seen and observed him, I don't think he's coming back as test captain. I don't think he would want to come back as test captain. And being the critic of Virat Kohli that I am, let me also say, does he deserve a side? Does he deserve a spot in the Test 11 right now? I don't think so. If you could drop Pujara, then you can also drop Virat Kohli. But no selector had the balls to do that. So let him get his average back up. Let him start scoring some runs. And I don't mean in West Indies. Let him score against South Africa and England. And then we'll talk about him becoming the next captain or not. I don't think Virat Kohli as a Test captain is even a question right now. That is not even viable right now. So overall, my point is that nobody wanted to disturb the equilibrium. Our World Test Championship हार गए, अच्छी बात है. As in ठीक है, हो गया, अच्छी बात तो नहीं है. But my point is कि everything is focused on the ODI World Cup this year, and I don't think anybody wanted to ruffle the feathers. For which reason I think Rohit Sharma still continues to be the test captain. Like Jamie said, I don't think he will be the test captain going to South Africa. I don't think he will even be playing 3 formats after the ODI World Cup. So Chaitanya, you were saying something. I was just at that point of time, I think I was saying that see, as a selector, sometimes you have to take tough calls. That's why you are called selector. That's why you are given that seat, that you take the tough calls. और वैसे भी हमने देखा हमारे players काफी easily rest कर लेते हैं कि now we are tired, we want to take rest. And if we would have called if some selector doing a selection, and he gives the reason about it, right reasons about it, then people don't worry about it, and even the player understand it. If you before the tournament, if you go to Rohit Sharma and tell him, listen, the World Cup is coming up, we need to move on in Test cricket. I don't think that you're gonna continue, or you will love to continue, for this Test captaincy. So why not you stay fresh for ODI cricket? You lead captaincy. Why don't we go out? We will say you are rested. जैसे हम बोल देते हैं काफी बार. नहीं तो we could have said that after selecting a team that we want to keep Rohit Sharma and other players very fresh. And this is the series where we want to give chance to our youngsters. You're not gonna give that. Just gonna throw your youngsters in South Africa, playing in South Africa, on a moving track. आप सारे youngsters वहाँ नहीं फेंकेंगे. आप यहाँ पे try कर सकते थे. So as a selector, if you come out with the right, explanation, then the nation will understand, then the cricketers will understand, then everyone will understand that point of view. Yeah. And I think keeping Rohit Sharma clutter free, that is most important. मुझे लगता है मतलब मेरे को उस टाइम पे बस यही बोलना था कि as a selector you need to take some hard calls because you want cricket to move ahead, because cricket कभी रुकेगा नहीं. रोहित शर्मा 36 years plus है, 36 and a half almost हो गए हैं. So I think जैसे जेमी ने बोला साउथ अफ्रीका में नहीं होंगे, तो I don't think so, क्योंकि अगर आप सोचिए एशिया कप के बाद या वर्ल्ड कप के बाद अगर आप हटाते तो वो उस पार्ट को कैसा लगता है, तो ऐसा लगेगा कि यार आपने उसको बस सीधा ही हटा दिया. बट अगर आप स्लो ट्रांजिशंस करते हैं ना हर एक चीज के अंदर, तो इट लुक्स बेटर फॉर मी. बट जेमी, ये सारे क्योस कंफ्यूजन के बीच में एक सिंपल एक लॉजिक से कांट द कोच कम इन एंड जस्ट टेल द मीडिया और द पीपल, भाई लेट अस प्ले 3 months to go, less than 100 days to go in the biggest tournament of ODI cricket, let us just play and focus. Rahul Dravid never comes up and says anything which is blunt and straight. मतलब यहाँ पे सब जवाब दे रहे हैं, सब कोई ना कोई किसी ना किसी पे क्वेश्चन उठा रहा है. He is not there to answer anything. That's a bit weird. As a fan. No, as a fan, as a journalist, you can be whatever it is. The fact is that BCCI
over the past years, they've stopped having to give answers, right? West Indies गई थी before this, before there used to be a departure PC, right? तो Rahul Dravid is just doing what his bosses are saying, ना? वो क्यों आएंगे बाहर? I said before, he's been an utter disappointment as coach, right? But if you're expecting Rahul Dravid to come and talk when the BCCI doesn't hold press conferences, then you're in some whole parallel world. Just to come back to the bigger topic, Rohit Sharma T20I आखिरी खेल चुके हैं पिछले साल, वो कभी T20I नहीं खेलेंगे टेस्ट में. Like I said, I don't think he's going to last more than 8-9 months. Might go South Africa. One day, चाहे इंडिया नवंबर 19 को वर्ल्ड कप जीते या उससे पहले हार जाए, you need to drop him the very next day with the trophy in hand, ideally. क्योंकि फिर आपको अगले 4 साल के लिए सोचना है ना. The Rohit Sharma captaincy experiment will end on November 19th. Because that's the last year of the World Cup. हम सब चाहते हैं कि उनके हाथ में ट्रॉफी हो, नहीं भी हुआ, there's no point. So win loss is very important, लेकिन you have to build for the future, right? So Rohit Sharma was always a stopgap option as captain, and I'll go back. He had 3 key result areas. 2 वो नहीं कर पाए, एक बाकी है October 5th to November 19th. Hope he scores runs, hope his players stay fit, hope the job gets done. लेकिन अगर वो वर्ल्ड कप जीते भी, उनको अगले दिन छोड़ दो, because he's not going to captain you 4.5 years down the line, right? This is what I'm saying right now. Just to pick up on something that Chaitanya talked about, अभी आपके टेस्ट कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं जो 6 महीने बाद शायद ड्रॉप हो सकते हैं. How is this logical? How is this good for Indian cricket? मेरे समझ से बाहर है. चलिए, वी कैन जस्ट होप कि एशिया कप और जो वर्ल्ड कप है वो अपने पास आ जाए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया. अब तो एशिया कप भी नहीं जीत रहे हम, व्हिच वाज सर्टेनली आवर फोर्ट्रेस. खैर, इस सेशन को यहीं एंड करेंगे. इट वाज लवली चैटिंग विद यू गाइस, एंड वी कैन जस्ट होप दैट द इंडियन क्रिकेट गोज, टचेस न्यू हाइट्स. I want to leave with a question that who is the next Indian Test captain? Who will be the next? For me, whenever Shreyas Iyer is fit, just give him the vice captaincy. Let Rahane lead for some time. Nurture, groom Shreyas Iyer, and let him lead the side. He's the best option. अजिंक्य रहाणे 2 टेस्ट मैच में रन नहीं बनाएंगे तो अगली सीरीज में दिखेंगे नहीं आपको. आप उनको सीधा कैप्टन बनवा रहे हो नर्चर करने के लिए. You can't have anyone else. They young kids. No, the next thing will be we'll be hearing, अगर यशस्वी ने 100 कर दिया तो यार इसे वाइस कैप्टन बना दो. सुनने को तो बहुत कुछ मिलता है यहाँ पे. चेतन जो बैठा, चेतन के पास न्यूज़ है. मैं अगर बोलूंगा ना तो फिर आधा घंटा और खिंच जाएगा. My producer is also, I have another vote in my support. मेरा producer भी कह रहा है श्रेयस अय्यर. It's the same. I just want to hear name from Chetan and Jamie. Shreyas Iyer के नाम पे I'll just say the same thing that I said with Virat Kohli. Is his spot in the playing 11 guaranteed? No, it's not. After the way the test side, the stopgap stopgap options are performed. How others are playing. Does not matter how others are playing. It always matters how you are playing. ठीक है. तो टीम डायनामिक्स के हिसाब से तो भाई अब पुजारा और रहाणे को भी ड्रॉप करते हो ना. पहले है ना, अपने टीम डायनामिक्स की बात नहीं कर रहा. गलत किया. यस, पुजारा को ड्रॉप आपने सही किया. यहाँ पे नहीं सही किया. प्रेजेंट सिनेरियो में आपको श्रेयस अय्यर को 11 में रखना पड़ेगा अब. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. आई एम नॉट सेइंग कोई जबरदस्ती थोड़े. चेतन का नाम सुन ले. चेतन का नाम कौन? चेतन भाई नाम तो बताओ. ये डिस्कशन आगे का, आप नाम तो बताओ. नाम सुनने की बात ही नहीं है यहाँ पे. I'll just say this कि because of a lack of chief selector, we did not have the merits to announce a new test captain, or you did not want to rock the board, you did not want to break the equilibrium, इसलिए आपने रोहित शर्मा को बनाया. The worst part is not retaining Rohit Sharma as test captain. The worst part is making Ajinkya Rahane vice captain. अगर आपको, for me, Ajinkya Rahane should have been made the captain. अगर आपको एक stop gap चाहिए था, ठीक है, क्योंकि 1 साल खेलेंगे, आप उनको बोल दो कि आप 1 साल के लिए कैप्टन की तरह ही खेलो यार, रन मत बनाओ. या अश्विन को बना देते, which obviously would not happen. My point is, अगर आप रोहित शर्मा को कैप्टन कंटिन्यू कर रहे हो, या किसी भी सीनियर प्लेयर को, and I'm just saying here, आप किसी भी सीनियर प्लेयर को अगर आप कैप्टन की तरह कंटिन्यू कर रहे हो, whether it's Rohit Sharma, whether it's Ajinkya Rahane, whether it's R Ashwin, it does not matter. The vice captain should have been Shubman Gill. आप कब उसको ट्रेन करोगे? अभी आप उसको कैप्टन नहीं बना सकते क्योंकि पिछले 2 साल आपने बर्बाद कर दिए. कोई आपने वाइस कैप्टन ग्रूम नहीं किया. स्टार्ट ग्रूमिंग हिम नाउ एटलीस्ट, कि वो 1 साल बाद जाके जब आपके पास कोई कैप्टन नहीं होगा तब कैप्टन बन जाए.
So at least you should have started grooming him now, but वो भी नहीं किया because चलिए again आपका नाम शुभमन है ना चैतन्य भाई जो आपने क्वेश्चन करा उत्तर तो दे के जाओ Jamie in that set. That's one. जेमी क्विकली चेतन भाई का चेतन गिल मेरे लिए श्रेयस आपके लिए 6 महीने से कह रहा हूँ शुभमन गिल यार शुभमन गिल इसी प्लेटफॉर्म में 10-12 बार बोल चुका हूँ ना यू हैव टू बी समवन फॉरगेट स्ट्राइकर छोड़ो 10 साल खेलेगा शुरू कर दो ना अभी प्रोसेस तो शुरू कर दो फेल होंगे कोई बात नहीं है ना राइट नाउ योर कैप्टन और वाइस कैप्टन ऐसे 2 खिलाड़ी है जो शायद साउथ अफ्रीका ना जाए बहुत बड़ी समस्या है भाई ये चैतन्य योर थॉट्स अब मैं बताता हूँ मतलब नाम तो हमारा सिमिलर है बट who is the chief selector right now, who made him the chief selector, who has approached the guy. I'm telling you for sure our next test captain will be Shubman Gill. That's for sure. He won't be, I don't think they will put him in a way. Might be you see straight away Shubman Gill is your new test captain. But again वो थोड़ा सा chaotic नहीं हो जाएगा चैतन्य भाई नहीं मतलब मैं वो नहीं कह रहा वो आप सिस्टम भूल जाओ मैं तो अभी कम chaotic है अब ये होने वाला है मतलब ये एक जरूरी प्रेडिक्शन है ये होने वाला है मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ मैं जो सवाल का जवाब दे रहा हूँ अभी कम chaotic है हाँ ये बात भी ठीक है बॉस just before we finish remember एक आपका फेवरेट फैन जो है ना वो एक चीज कह रहा है शुभमन गिल इज नॉट अ कैप्टेंसी मटेरियल केएल राहुल विल बी द न्यू टेस्ट कैप्टन आफ्टर रोहित शर्मा रविशंकर कह रहे हैं मेरा नहीं है रविशंकर बोल रहे I'm not even gonna bother commenting on his comment ठीक है पता नहीं कौन से उन्होंने कितना क्रिकेट देखा है कितने सुबोध are you still watching the show हम चार कुछ नहीं सुबोध का कमेंट चाहिए अगर सुबोध जुड़ा है अभी लाइव स्ट्रीम पे जल्दी से अपना जवाब टाइप करो जितना केएल राहुल के लिए नफरत है किसी इंसान के अंदर वो सुबोध के अंदर है ये मैं दावे से कह सकता हूँ सुबोध is a new guy who's joined us but I don't know I have not seen सुबोध but मैं यहाँ पे रविशंकर के कमेंट को तो छोड़ ही दो एक मिनट के लिए माय पॉइंट इज आई डोंट नो हाउ मच क्रिकेट ही इज वॉच्ड लेट अलोन हाउ मच ही इज वॉच्ड शुभमन गिल बट एनीवे ही मतलब मैं आई फॉरगॉटन माय चेन ऑफ थॉट इवन मतलब हाँ मैं ये कह रहा था कि जिस दिन ओडीआई टीम अनाउंस हुई थी वेस्ट इंडीज टूर खेले एंड आई सॉ अ नेम इन दैट साइड यू हैव टू गेस व्हाट नेम इज दैट and I was like ये फिर वही करने वाले हैं जो इन्होंने T20 वर्ल्ड कप में किया yeah so I got that मैंने उस दिन होप्स छोड़ दी थी ओडीआई वर्ल्ड कप की जब मैंने वेस्ट इंडीज वाली ओडीआई टीम देखी so I got that before you close the show I would want you to guess कौन सा वो नाम है but even if you don't I guess Sanju no then no Jamie in the one day squad one name is there yeah ईशान किशन I'm just going through the side हाँ कौन है भाई कौन है भाई बताइए क्यूरियोसिटी हो गई है तो you saying ODI na yeah I think Sky, are you talking about Sky yeah you need to watch more cricket Ravi Shankar I'm saying Sky no जयदेव उनादकट अब उसको डिज्नीलैंड के ट्रिप पे लेके yes because they don't trust Arshdeep with the left arm. Arshdeep Singh yes if you don't trust Arshdeep with the left arm thing you play him more ताकि he learns from the experience not bring someone जो अक्टूबर में 9 के रन रेट से रन खाने वाला है yes so ये अलग टॉपिक होने वाला है डिबेट का ये जो if Jaydev Unadkat goes on the same Disneyland trip as Dinesh Karthik did thank you bye bye कह दो आप ODI वर्ल्ड उन्हें एक फास्ट स्लोअर बॉलर चाहिए था जो ठीक ठाक इकोनॉमी से फेंक सके जिसको जो कि बैट्समैन ही पूछे भाई फास्ट फेंकने वाले हो या स्लो फेंकने वाले हो अगर स्लो ही फेंकने वाले हो तो पास से ही फेंक लो इतनी दूर से क्यों आ रहे हो ओके अभी ये खिंचता ही जाएगा 7:35 ये बहुत अलग टॉपिक और बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा खैर वेल थैंक यू गाइस थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस इस सेशन को ही रैप करेंगे फाइनली लवली टॉकिंग टू यू फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म क्योंकि